So in this video we discuss about capacitance. So now what is a capacitor? What is a capacitor? So capacitor is a device. So it is a device which is used to store the energy in electrical form. Which can be used later. तो जिसे हम बाद में यूज कर सकते हैं. तो नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपेसिटर. तो कैपेसिटर बना कैसे होता है, किस चीज का बना होता है ये. Construction of capacitor. So a capacitor is basically made of two conductors. It is made of two conductors placed at some distance apart. जैसे मान लो एक ये कोई कंडक्टर है ए and another conductor is B, and there is some separation between these two conductors. So this forms the capacitor. Now one of the conductor is given positive charge and other is given equal amount of negative charge. The conductor which is given positive charge may be known as positive plate. Each of the conductor is known as plate, and the conductor which is given positive charge is known as positive plate, and which is given negative charge is known as negative plate. We can see that total charge of capacitor is 0. जैसे इस पे प्लस क्यू चार्ज है और इस पे माइनस क्यू चार्ज है, तो टोटल चार्ज मिलके दोनों का 0 हो गया. सो टोटल चार्ज ऑफ कैपेसिटर इज 0, बट द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट इज नोन एज चार्ज ऑफ कैपेसिटर. द चार्ज ऑन पॉजिटिव plate is known as charge of capacitor. Now when we give these charges to the conductors, a potential difference is established between the conductors. तो जिसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जिसको नेगेटिव चार्ज दिया उसका पोटेंशियल कम होगा. सपोज पोटेंशियल ऑफ द पॉजिटिव कंडक्टर इज V plus and potential of negative conductor is V minus. तो फिर इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V,
तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स V, तो ये हो जाएगा V प्लस माइनस V माइनस, and this potential difference between conductors is known as potential of capacitor. This potential difference between conductors is known as potential of capacitor. So finally we can say that Q is the charge of capacitor and V is the potential of capacitor. It is found that if we give more charge to the conductors, then potential difference will also be more. So we can see that it is found that Q is directly proportional to potential. Then more is the potential difference between the conductors, so more should be the charge on the conductors. So Q is found to be proportional to V. And if you remove this proportionality sign, तो यहाँ पे constant आता है C. And C is known as capacitance of the capacitor. Capacitance of capacitor. और C का यूनिट होता है फेरेड SI सिस्टम में. SI यूनिट इज फेरेड. So 1 farad is quite a big unit, so we also use smaller units like microfarad, picofarad, nanofarad, etc. So we have this relation Q equal to CV. अब क्वेश्चन ये है कि जो वैल्यू है C की वो किस बात पे डिपेंड करती है, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. तो वैल्यू ऑफ C डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर. तो ज्योमेट्री का मतलब है कि मतलब जो कंडक्टर्स हैं उनकी शेप साइज क्या है, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर्स सेपरेशन बिटवीन कंडक्टर्स क्या है उस पर डिपेंड करेगा. Separation between conductors and medium between conductors. Medium between conductors. और कैपेसिटेंस इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज है या कितना पोटेंशियल है, क्योंकि देखो यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा C इक्वल टू क्यू अपॉन V. तो यहाँ से फॉर्मूला आएगा C, V को नीचे ले आओ तो C इक्वल टू क्यू अपॉन V. सपोज अगर आप Q इंक्रीज करते हो तो V भी इंक्रीज कर जाएगा, सो दैट रेशियो Q अपॉन V रिमेन्स सेम. So C is independent of
तो C is independent of charge or potential of capacitor. क्योंकि अगर आप चार्ज इंक्रीज करोगे तो वोल्टेज भी प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज कर जाती है, तो रेशो इसका सेम रहता है Q अपॉन V का। तो यानी अगर इस पे कोई चार्ज नहीं भी है तो भी इसकी कैपेसिटेंस कुछ ना कुछ होगी। तो कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज और पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। इसके बाद भी क्वेश्चन ये है कि हाउ टू चार्ज ए कैपेसिटर। हाउ टू चार्ज a capacitor। तो अभी कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। तो मान लो जैसे ये कोई बैटरी है जिसका पोटेंशियल V है, एंड वी कनेक्ट द बैटरी अक्रॉस द टू कंडक्टर्स, और स्विच है मान लो। तो जैसे हम स्विच क्लोज करेंगे तो ये बैटरी क्या करेगी, जैसे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो दिस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कंडक्टर ए। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ आने शुरू हो जाएंगे, एंड द बैटरी विल मेक द इलेक्ट्रॉन्स टू क्रॉस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड, और इलेक्ट्रॉन फिर बी पे जाने शुरू हो जाएंगे। तो जब ए में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे देन ए विल स्टार्ट एक्वायरिंग पॉजिटिव चार्ज एंड बी विल एक्वायर इक्वल नेगेटिव चार्ज, और इस तरह से ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आता जाएगा इनमें। तो पोटेंशियल डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाएगा ए और बी के बीच में, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते रहेंगे तो चार्ज बढ़ता जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इनके बीच में बढ़ता जाएगा। लेकिन एक टाइम आएगा जब पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। तो व्हेन VA माइनस VB इक्वल टू V, then charging process will stop। Then charging process will stop। तो उस समय जो फिर कैपेसिटर होगा वो मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा, और उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए और बी के बीच वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू V। और फिर उस टाइम पे जो चार्ज होगा प्लस Q इस पे और माइनस Q इस पे, तो Q की वैल्यू होगी C इंटू V, वेयर C इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। देखो बेसिकली बैटरी यहाँ पे क्या करती है, देखो इलेक्ट्रॉन अगर A से B जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि चार्ज B से A जा रहा है। चार्ज मीन्स पॉजिटिव चार्ज, तो चार्ज गोस फ्रॉम B टू A। तो बैटरी क्या करती है कि चार्ज को, जैसे चार्ज Q है, तो बैटरी चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे ट्रांसफर करती है, क्योंकि B का पोटेंशियल कम होगा जब ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, तो B का पोटेंशियल कम होगा और A का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। और बैटरी क्या कर रही है बेसिकली, तो बैटरी इज ट्रांसफरिंग द चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। देखो चार्ज अपने आप तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ही जाएगा, यानी अगर आप चार्ज को फ्री छोड़ दो स्पेस में तो ये अपने आप तो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ ही जाएगा। तो हेयर चार्ज मीन्स पॉजिटिव चार्ज, व्हेन आई से चार्ज इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज।
तो if a charge left free to itself, it will move from high potential to low potential. A charge free to move will go by itself from high potential to low potential. लेकिन अगर चार्ज को हमने लो से हाई पोटेंशियल पे लेके जाना है तो वी विल हैव टू डू सम वर्क ऑन इट. But to take a charge from low to high potential, some work is to be done on it. And battery does that work. And battery does that work. और बैटरी के वर्क का जो फार्मूला होता है, वर्क डन बाय बैटरी, ये फार्मूला होता है चार्ज फ्लोइंग थ्रू दी बैटरी Q इनटू पोटेंशियल ऑफ बैटरी. जैसे बैटरी का पोटेंशियल V है और बैटरी ने किसी चार्ज Q को लो से हाई पोटेंशियल पे ट्रांसमिट किया तो बैटरी जो वर्क करेगी वो हो जाएगा Q इनटू V. फिर आप ये Q की वैल्यू पुट कर सकते हो CV, तो फिर हो जाएगा CV इंटू V यानी CV स्क्वायर. So this is how to charge a capacitor using a battery. इसके बाद अभी जब हमने इसको चार्ज किया कैपेसिटर को बैटरी से तो डेफिनेटली सम एनर्जी वुड बी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. तो कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी? तो नेक्स्ट पार्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर. U. तो एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर, मान लो जैसे कोई कैपेसिटर है हमारे पास, इसकी कैपेसिटेंस है C और इस पे चार्ज है Q. तो इसकी जो एनर्जी होगी कैपेसिटर की वो क्या होगी? बेसिकली इट इज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट in transferring the charge from negative plate to the positive plate. So it is work done by an external agent in transferring the charge from one conductor to other conductor. तो मान लो शुरू में इन पे अभी कोई चार्ज नहीं था और हमने धीरे धीरे चार्ज ट्रांसफर करना शुरू किया फ्रॉम B टू A और किसी टाइम तक हम इस पे Q चार्ज यानी स्मॉल Q चार्ज ट्रांसफर कर चुके हैं. तो इस पे चार्ज होगा स्मॉल Q और इस पे माइनस Q.
फिर उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच वी प्राइम मान लेते हैं उस टाइम, तो उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी प्राइम वो हो जाएगा क्यू अपॉन सी। यहाँ से वी का फॉर्मूला आएगा क्यू अपॉन सी, तो वी प्राइम इज क्यू अपॉन सी। तो जिस समय चार्ज स्मॉल क्यू है और माइनस स्मॉल क्यू है और कैपेसिटेंस ही है, तो उस टाइम जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा क्यू अपॉन सी। फिर मान लो फर्दर हम इसमें डी क्यू चार्ज और ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम बी टू ए, तो फिर इस डी क्यू चार्ज को ट्रांसफर करने में जो वर्क करना पड़ेगा तो वर्क हो जाएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो नेटवर्क आ जाएगा इंटीग्रल डी क्यू इंटू वी प्राइम। तो वी प्राइम की वैल्यू पुट कर दो, तो 1/c इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, c कांस्टेंट है, और जाएगा इंटीग्रल q dq, और चार्ज की लिमिट हो जाएगी 0 से q। तो q का इंटीग्रेशन आएगा q²/2, लिमिट 0 से q, तो लिमिट पुट कर देंगे तो यहाँ से w आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा q²/2c, and this work done will be stored in the form of potential energy of capacitor which is equal to u. So u equal to q²/2c। तो ये फार्मूला आ गया u का q²/2c। अब आप इस फार्मूले को कैपेसिटेंस और पोटेंशियल की फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे q की वैल्यू अगर cv पुट कर दो यहाँ पे, तो फिर u कितना आ जाएगा q²/2c। तो q की वैल्यू पुट करो cv, तो cv का स्क्वायर अपॉन 2c, तो ये आ जाएगा हाफ cv²। या अगर आपने q और v में लेके आना है तो c की वैल्यू पुट कर दो, तो c की वैल्यू है q अपॉन v, तो फिर आ जाएगा हाफ क्यू वी। तो ये तीन फॉर्मूले हो गए, q²/2c, हाफ cv² एंड हाफ क्यू वी। तो वन मोर थिंग, जैसे हमने जब कैपेसिटर को चार्ज किया था बैटरी से, तो बैटरी ने वर्क किया था cv², लेकिन फाइनल जो एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर में वो आई है हाफ cv², यानी विच इज हाफ ऑफ द वर्क डन बाय बैटरी। तो बाकी हाफ एनर्जी कहाँ गई? मतलब बैटरी ने तो वर्क किया cv², लेकिन कैपेसिटर में जो स्टोर हुई वो इसकी हाफ ही हो पाई स्टोर, तो बाकी हाफ कहाँ जाएगी? सो रिमेनिंग हाफ एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू हीट। तो फिर यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होगी while charging the capacitor, some heat will also be produced, और वो हीट हो जाएगी वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो दैट इज cv² माइनस हाफ cv², तो ये आ जाएगा हाफ cv²। इसके बाद अभी सिंबल ऑफ कैपेसिटर क्या होगा? सिंबल ऑफ कैपेसिटर, तो अभी कैपेसिटर का सिंबल ये होता है लाइक दिस, और C इसकी कैपेसिटेंस। So in this video we discuss about types of capacitors.
तो we can have three types of capacitors. Three types of capacitors. तो first is parallel plate capacitor. Second is spherical capacitor. And third is cylindrical capacitor. So let us discuss them one by one. So first we take parallel plate capacitor. So parallel plate capacitor is made of two plates kept parallel to each other. जैसे मान लो ये दो प्लेट्स हैं, each of area A, and separation between the plates is D. Then what is the capacitance of this capacitor that we have to find? तो कैपेसिटेंस निकालने का तरीका ये होता है कि मान लो अगर हम एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दें, से प्लस क्यू, और एक को माइनस क्यू चार्ज, नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू दें, तो फिर इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो मान लो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, देन कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो इस तरह से हम इसकी कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो देखो हमने इसको जो प्लस क्यू चार्ज दिया है वो इसके अंदर वाले सरफेस पे होगा सारा, और जो माइनस क्यू चार्ज हमने इसको दिया है वो भी इसके अंदर वाले सरफेस पे होगा। तो ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट। तो मान लो पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल है V1 और नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल है V2। तो फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इनके बीच, तो दैट विल बी V1 माइनस V2, and capacitance is equal to Q upon potential difference. Now how to find this potential difference V? Suppose E is the electric field between the plates, तो E की वैल्यू कितनी होगी? तो जैसे अगर हम एक प्लेट को देखें, मान लो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और यहाँ पे माइनस सिग्मा, तो सिग्मा की वैल्यू होगी Q अपॉन A। तो एक प्लेट की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E, वो आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और जो नेगेटिव प्लेट है इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ही आएगा, राइट की तरफ। तो नेट फील्ड हो जाएगा दोनों का एडिशन, मतलब जो पॉजिटिव प्लेट है इसकी वजह से भी फील्ड इस तरफ आएगा राइट की तरफ, और नेगेटिव प्लेट की वजह से भी फील्ड राइट की तरफ आएगा, और हर एक का फील्ड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों का फील्ड ऐड हो जाएगा, sigma upon 2 epsilon naught plus sigma upon 2 epsilon naught. So that will make sigma upon epsilon naught. Putting the value of sigma, which is Q upon A, so this will give you Q upon A epsilon naught. और फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V, तो वो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस E इंटू डी। तो अगर E की वैल्यू रख दो यहाँ पे तो आएगा क्यू डी अपॉन
ए एप्सिलॉन नॉट। अभी वी की वैल्यू यहाँ पे रख दो, क्यू अपॉन वी, तो वी की वैल्यू है क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा और ये एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। So this is the formula for capacitance of parallel plate capacitor। इसके बाद अभी एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। It is energy stored per unit वॉल्यूम। तो अगर जैसे हम इस केस में देखें, इन केस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, टोटल एनर्जी जो इसकी होगी उसका फॉर्मूला होता है U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो फार्मूला फॉर एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज हाफ सी वी स्क्वायर, और इसका जो वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम होगा इसका एरिया इंटू डिस्टेंस ए इंटू डी, यानी वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट, इस पूरे पार्ट का वॉल्यूम। तो फिर एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू, तो ये हो जाएगी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम ए डी। और फिर अगर सी की वैल्यू डाल दो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2 AD। तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू वी अपॉन डी का होल स्क्वायर, और वी अपॉन डी यहाँ से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। तो फिर ये फार्मूला आ जाएगा स्मॉल यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सो दिस इज फार्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी। तो ये फार्मूला हमें क्या बता रहा है, देखो कि जहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी ई की वैल्यू कुछ होगी जहाँ पे, तो वहीं पे कुछ एनर्जी डेंसिटी होगी। यानी अगर ई इज जीरो इन सम रीजन, इफ ई इज जीरो देन यू इज आल्सो जीरो। मतलब कि जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो वहाँ पे कोई एनर्जी भी स्टोर नहीं होगी। तो जैसे हम यहाँ पे देखें, अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल एग्जिस्ट ओनली इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि जो पॉजिटिव प्लेट है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा और नेगेटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। तो नेट फील्ड यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल और अपोजिट होंगे। और ऐसे यहाँ पे भी नेट फील्ड जीरो हो जाएगा। पॉजिटिव प्लेट की वजह से फील्ड इस तरफ होगा, नेगेटिव प्लेट की वजह से फील्ड इस तरफ होगा। दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में और अपोजिट हैं, तो फिर यहाँ पे भी नेट फील्ड जीरो हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट्स ओनली इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स। तो फिर जो ये एनर्जी हमने निकाली है हाफ सी वी स्क्वायर, ये एनर्जी फिर केवल इसी रीजन में लाई करेगी, यानी इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स, एंड आउटसाइड द रीजन द प्लेट्स, तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर जीरो होगी। सो दिस इज इंडिकेशन ऑफ दिस फार्मूला कि जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा केवल उसी रीजन में ही एनर्जी लाई करेगी, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा
वहां पे एनर्जी 0 हो जाएगी। इसके बाद अभी फोर्स बिटवीन दी प्लेट्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लेट्स। तो जैसे मान लो ये दो प्लेट्स हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा। जैसे इस पे प्लस क्यू चार्ज है और इस पे माइनस क्यू चार्ज है, तो व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी प्लेट्स, तो दैट वी हैव टू फाइंड। तो इसका तरीका ये हो सकता है कि अगर हम एक प्लेट की वजह से दूसरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें और फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड को उस दूसरी प्लेट के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास ये फोर्स आ जाएगा। तो मान लो अगर हम ये निकालें कि पॉजिटिव प्लेट की वजह से नेगेटिव प्लेट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मान लो पॉजिटिव प्लेट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, तो E1 होगा अवे फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट, और जो E1 की वैल्यू है वो हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक सिंगल सरफेस की वजह से, एक सिंगल प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू रख दो Q अपॉन ए, तो आएगा Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, और फिर जो फोर्स आ जाएगा F वो हो जाएगा Q इंटू E1, और फोर्स इस तरफ होगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो फिर F की वैल्यू हो जाएगी मैग्नीट्यूड में Q इंटू E1, E1 की वैल्यू रख दो ये, तो Q इंटू Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, तो आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। So this is force of attraction between the plates. अब एक क्वेश्चन लेते हैं अभी। Consider a parallel plate capacitor. And separation between the plates is D1, initial separation. Suppose one plate has charge plus Q and other plate has charge minus Q. Now if the separation between the plates is increased from D1 to D2, if separation between the plates is increased from D1 to D2, then how much work is to be done by us। तो ये हमने इसमें बताना है कि सेपरेशन अगर D1 से D2 हमने कर दी तो कितना वर्क हमें इसमें करना पड़ेगा। तो देखो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है F, तो इसकी वैल्यू होती है Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, और ये फोर्स डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है, मतलब जो डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच में उसके इंडिपेंडेंट है। तो अगर हम सेपरेशन को कम ज़्यादा करें और
चार्ज अगर कांस्टेंट है, क्यू अगर कांस्टेंट है, तो फिर ये फोर्स भी कांस्टेंट ही रहेगा, इस फोर्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम सेपरेशन को D1 से D2 कर दें, तो पहली बात तो इनकी सेपरेशन बढ़ाने के लिए हमें भी इस पे इतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। मान लो हमने एक प्लेट को फिक्स कर दिया और फिर दूसरी प्लेट को हम मूव कर रहे हैं और सेपरेशन हमने D1 से बढ़ा के D2 कर दी। तो सेपरेशन बढ़ाने के लिए हमें ऑलमोस्ट उतना ही फोर्स F इसको बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में लगाना होगा। तो फिर हमारे फोर्स का वर्क आ जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स है, तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा D2 माइनस D1। तो फिर वर्क आ जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। F की वैल्यू रख दो, तो आएगा Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट इंटू D2 माइनस D1। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको हम एनर्जी से भी कर सकते हैं, अल्टरनेट मेथड। तो हम जो भी वर्क करेंगे बेसिकली वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो फिर वर्क आ जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है सपोज U1, तो वो होगी Q स्क्वायर अपॉन 2C1, और C1 की वैल्यू आएगी जो इनिशियल कैपेसिटेंस होगी दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1। तो D1 ऊपर चला जाएगा, और जो फाइनल एनर्जी होगी वो होगी Q स्क्वायर अपॉन 2C2, और C2 की वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2। तो D2 ऊपर आ जाएगा, और फिर U2 और U1 की वैल्यू यहाँ पे रखोगे, तो यू विल गेट द सेम आंसर Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू D2 माइनस D1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सेम क्वेश्चन है, अगर सपोज बैटरी कनेक्टेड रहे और फिर हमने सेपरेशन बढ़ानी हो प्लेट्स के बीच में, तो फिर कितना वर्क करना पड़ेगा। इस केस में क्या था कि बैटरी वाज नॉट कनेक्टेड, हमने कैपेसिटर को चार्ज किया और बैटरी को हटा लिया था, तो चार्ज इज कांस्टेंट ऑन द कैपेसिटर, इस करके फोर्स भी यहाँ पे कांस्टेंट था क्योंकि चार्ज कांस्टेंट था। लेकिन अगले केस में अगर मान लो बैटरी कनेक्टेड रही, जैसे मान लो ये कैपेसिटर है, and the battery is connected between the plates, बैटरी का पोटेंशियल V मान लो, इनिशियल सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज D1, एरिया A, तो इनिशियल कैपेसिटेंस होगी इसकी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1। अब सपोज हमने इनके बीच जो सेपरेशन है वो D1 से D2 कर दी while बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, तो फिर इसमें हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो सेपरेशन हमने D1 से D2 कर दी, तो फिर कितना वर्क हमें करना पड़ेगा। अब ये कैसे निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे चार्ज
कांस्टेंट नहीं रहेगा, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। एज बैटरी रिमेन्स connected, so potential difference between the plates remains constant। और फिर जैसे Q होता है CV और C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बाई D होती है। अब सेपरेशन क्योंकि यहाँ बढ़ती जाएगी तो कैपेसिटेंस कम होती जाएगी, कैपेसिटेंस कम होती जाएगी और V तो सेम है, तो फिर Q डिक्रीज करता जाएगा, तो Q विल डिक्रीज एज सेपरेशन इंक्रीजेस। और फिर Q डिक्रीज करेगा तो फिर जो फोर्स है वो भी डिक्रीज करेगा, तो फोर्स यहाँ पे वेरिएबल हो जाएगा। तो फिर वेरिएबल फोर्स के लिए जो फार्मूला होता है वर्क डन का वो होता है इंटीग्रल F dx। तो मान लो फिर इसको हम कैसे करेंगे, हमने एक प्लेट फिक्स कर दी और दूसरी प्लेट को हम मूव करवा रहे हैं। सपोज ये दूसरी प्लेट किसी टाइम पे डिस्टेंस x पे है फर्स्ट प्लेट से, तो फिर उस टाइम जो कैपेसिटेंस होगी वो हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A बाई एक्स। और फिर उस टाइम जो चार्ज होगा कैपेसिटर पे वो हो जाएगा CV, यानी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन एक्स इंटू V। तो फिर उस टाइम जो फोर्स होगा प्लेट्स के बीच F वो हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू रख दो तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर A स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 2A एप्सिलॉन नॉट। तो ये कैंसिल, तो ये आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट A V स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इतना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा उस टाइम जब सेपरेशन x होगी। अब F की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट A V स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे और अंदर बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और लिमिट हो जाएगी x की D1 से D2। तो फिर आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट A V स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा -1 अपॉन एक्स, सेपरेशन लिमिट फ्रॉम D1 टू D2। तो फिर आ जाएगा आफ्टर पुटिंग द लिमिट्स -1 अपॉन D2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आएगा हाफ इंटू V स्क्वायर भी है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 माइनस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2 इंटू V स्क्वायर, और ये आएगा हाफ, ये C1 है और ये C2 है, तो हाफ C1 माइनस C2 इंटू V स्क्वायर। अगर इस क्वेश्चन को हम एनर्जी मेथड से करें देखो, शुरू में जो कैपेसिटेंस थी C1 वो होगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1, और बाद में कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2।
तो कैपेसिटेंस कम हो गई है क्योंकि डी बढ़ गया। तो फिर जो इनिशियल एनर्जी है कैपेसिटर में U1, तो वो होगी हाफ C1 इंटू वी स्क्वायर, और फाइनल एनर्जी इज हाफ C2 वी स्क्वायर। अब C2 कम है C1 से, तो फिर U2 भी U1 से कम होगा, तो यानी U2 इज लेस देन U1। So energy of capacitor decreases. So what is decrease in energy of capacitor? क्या आएगा U1 माइनस U2, यानी हाफ C1 माइनस C2 इंटू वी स्क्वायर। ये वैल्यू पुट कर दी U1 और U2 की, तो ये आ जाएगा। अगर हम चार्ज देखें तो इनिशियल चार्ज जो था कैपेसिटर पे, सपोज Q1, वो होगा C1 इंटू वी, एंड फाइनल चार्ज इज C2 इंटू वी। अब C2 इज लेस देन C1, तो चार्ज भी कम हो जाएगा, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर विल डिक्रीज। तो फिर वो चार्ज गया कहाँ पे, तो वो चार्ज बैटरी में वापस फ्लो कर जाएगा, यानी इस तरह से। जैसे मान लो शुरू में सेपरेशन D1 थी, और बाद में सेपरेशन बढ़ा के हमने D2 कर दी। तो पहले चार्ज Q1 था, अब चार्ज Q2 हो गया, तो चार्ज वापस फ्लो कर जाएगा। और कितना चार्ज फ्लो करेगा, डेल्टा Q सपोज, तो डेल्टा Q होगा Q1 माइनस Q2। पहले Q1 था, बाद में Q2 रह गया, तो कितना कम हो गया, Q1 माइनस Q2 कम हो गया, और वो वापस बैटरी में से फ्लो कर जाएगा। दैट इज C1 माइनस C2 इंटू वी। तो क्योंकि चार्ज बैटरी में वापस फ्लो कर रहा है, तो फिर ये बैटरी के ऊपर वर्क होगा। तो वर्क डन ऑन बैटरी, इसका फार्मूला होता है भी चार्ज फ्लोन थ्रू दी बैटरी इनटू पोटेंशियल ऑफ बैटरी। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू रख दो, तो ये आ जाएगा C1 माइनस C2 इंटू वी, और एक वी यहाँ पे है, तो वी का स्क्वायर। तो इतना वर्क बैटरी के ऊपर हो जाएगा, और ये है डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो बेसिकली हमने जो वर्क किया फोर्स लगा के सेपरेशन बढ़ाने में, हमने जो वर्क किया, और जो कैपेसिटर की एनर्जी डिक्रीज हो गई, वो दोनों मिलके बैटरी के अंदर चले जाएंगे। यानी वर्क डन बाय अस प्लस डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ये दोनों चले जाएंगे बैटरी के अंदर। क्योंकि बैटरी के ऊपर वर्क हुआ है, तो फिर बैटरी की एनर्जी बढ़ जाएगी, तो बैटरी की एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी जितना बैटरी के ऊपर वर्क हुआ। तो फिर ये हो जाएगा वर्क डन ऑन बैटरी, या इंक्रीज इन दी एनर्जी ऑफ बैटरी। तो जो भी हमने वर्क किया और जो भी डिक्रीज हुई एनर्जी कैपेसिटर की, वो दोनों मिलके बैटरी के अंदर चले जाएंगे। तो दिस इज इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ बैटरी। And what is increase in energy of battery? That is equal to work done on battery. तो फिर यहाँ से ये आ जाएगा decrease in energy of capacitor is this much, and increase in energy of battery is this much. तो फिर यहाँ से वर्क डन बाई एस आ जाएगा, इसको उधर ले जाओ,
तो माइनस हो जाएगा, तो आंसर आएगा हाफ C1 माइनस C2 इंटू वी स्क्वायर। तो सेम आंसर जो हमने पहले निकाला था। ओके, so in the last video we discussed about parallel plate capacitor. So in this video we will discuss about spherical capacitor. So second one is spherical capacitor. So a spherical capacitor is made of two concentric conducting spheres. Two concentric conducting spherical shells. जैसे मान लो एक ये शेल है और दूसरा ये शेल, इसकी रेडियस है a और इसकी रेडियस b। तो व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर? तो उसके लिए अगर मान लो हम इसको चार्ज दें प्लस क्यू और इसको चार्ज दें माइनस क्यू, जो प्लस क्यू चार्ज है वो इसके आउटर सरफेस पे होगा और माइनस क्यू चार्ज इसके अंदर वाले सरफेस पे होगा। नाउ फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्फीयर्स। मान लो इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है। देन पोटेंशियल डिफरेंस इज V1 माइनस V2 और फिर जो कैपेसिटेंस आएगी C, तो दैट विल बी Q अपॉन V। तो नाउ लेट अस फाइंड V1 एंड V2 एंड देन V। अब जो पोटेंशियल V1 यानी जो इनर स्फीयर है, इसका जो पोटेंशियल आएगा V1, इनर स्फीयर का पोटेंशियल, तो किसी भी स्फीयर का पोटेंशियल जब निकालेंगे तो दोनों चार्जेस की वजह से निकालेंगे, प्लस क्यू की वजह से भी और माइनस क्यू की वजह से भी। तो फिर V1 जो पोटेंशियल आएगा अंदर वाले स्फीयर का प्लस क्यू की वजह से, तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन ए। और जो बाहर वाला चार्ज है माइनस क्यू, बाहर वाले स्फीयर जो चार्ज है माइनस क्यू, इसकी वजह से अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल आएगा नेगेटिव आएगा और आएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन बी। क्योंकि जो जब इसका पोटेंशियल हम निकालेंगे माइनस क्यू की वजह से, तो नीचे फिर इसी की रेडियस आएगी विच इज इक्वल टू डी, क्योंकि ये पॉइंट इसके लिए अंदर का पॉइंट है और अंदर के पॉइंट पे पोटेंशियल वही होता है जो खुद के सरफेस पे होता है। तो यहाँ से फिर ये आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। ऑन सिंप्लीफाइंग वी गेट Q इंटू बी माइनस ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट into AB and potential of outer sphere V2। तो जो प्लस क्यू चार्ज है इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा KQ अपॉन B और जो माइनस क्यू चार्ज है इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा माइनस KQ अपॉन B, तो जीरो हो जाएगा ये। तो फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस V है वो हो जाएगा V1 माइनस V2, V2 जीरो हो गया, तो V इज इक्वल टू V1 itself। तो नाउ कैपेसिटेंस इज Q अपॉन V यानी Q अपॉन V1 माइनस V2। V2 जीरो है और V1 की वैल्यू डाल दो, तो आएगा Q अपॉन Q B माइनस ए और ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB। तो Q से Q कैंसिल
तो ये आपका आंसर आ गया C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B minus A. So this is the capacitance of spherical capacitor. अब इसमें एक स्पेशल केस देखो। अगर मान लो A और B की वैल्यूज आपस में काफी क्लोज हैं, जैसे मान लो ये A और ये B, एंड सपोज B माइनस A का जो डिफरेंस है ये D के बराबर है। So this difference is D. यानी A and B are very close to each other. If A and B are nearly the same, थोड़ा सा डिफरेंस है A और B के बीच, एंड B माइनस A इज इक्वल टू D, तो फिर जो फार्मूला आएगा कैपेसिटेंस का, तो यहाँ पे हम B को ऑलमोस्ट A के बराबर ही रख सकते हैं और B माइनस A D के बराबर हो जाएगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A, मतलब B को हमने A पुट कर दिया और B माइनस A को D पुट कर दिया, तो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर अपॉन D। तो इस फार्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई A स्क्वायर अपॉन D, और 4 पाई A स्क्वायर ये हो जाएगा सरफेस एरिया इसका। तो ये फार्मूला बन गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, वेयर A इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। 4 पाई A स्क्वायर ले लो या 4 पाई B स्क्वायर भी ले सकते हो, क्योंकि A और B में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम यहाँ पर A को भी B पुट कर सकते थे, तो फिर ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर आ जाता। तो 4 पाई A स्क्वायर या 4 पाई B स्क्वायर दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम ही होगी। तो ये फार्मूला बन गया जस्ट लाइक दैट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो फिर हम इसकी कैपेसिटेंस जैसे हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की निकाली थी, तो उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसके बाद अभी अगर सेकंड स्पेशल केस, a single sphere can also act as a capacitor. A single sphere can also act as a capacitor by assuming outer sphere to be of infinite radius. जैसे मान लो कोई सिंगल स्फीयर है, ये रेडियस r का, तो ये भी एक कैपेसिटर का काम कर सकता है। तो फिर इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी? तो हम ये मान लें कि ये जो कैपेसिटर है ये भी दो स्फीयर से मिलकर बना है, जिसमें एक का रेडियस है r और दूसरा स्फीयर जो है वो इनफाइनाइट रेडियस का है। तो फिर यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दो r और b टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो अगर ये मान लें कि जो सेकंड स्फीयर है वो इनफाइनाइट रेडियस है,
तो फिर जो बी है वो इन्फिनिटी हो जाएगा और आर ए के बराबर हो जाएगा। और फिर अगर यहाँ पुट कर दें हम, ए को आर पुट कर दें और बी के कंपैरिजन में ए काफ़ी स्मॉल है, तो लेट अस नेग्लेक्ट ए इन कंपैरिजन टू बी। फिर बी से बी कट जाएगा और फिर सी आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ए की वैल्यू आर पुट कर दो और बी से ये बी कैंसिल हो जाएगा। तो देखो जैसे ये फार्मूला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। तो नाउ लेट अस नेग्लेक्ट ए इन कंपैरिजन टू बी। तो हमने ए को बी के कंपैरिजन में इग्नोर कर दिया और फिर बी से बी कैंसिल हो गया और फिर ए की वैल्यू पुट कर दी आर, तो आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। So this is formula for the single for the capacitance of the single sphere. इसके बाद अभी सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो a cylindrical capacitor is made of two coaxial cylinders. जैसे मान लो कि ये सिलेंडर है, एंड सपोज इसकी रेडियस है ए और ये सेकंड सिलेंडर है। एंड सपोज इसकी रेडियस है बी and suppose length of the cylinders is L, and assume that L is very greater than A and L is also very greater than B। तो फिर इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी? तो तरीका सेम ही है करने का। अगर हम इसको प्लस क्यू चार्ज दें और इसको माइनस क्यू चार्ज दें, देन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। तो फिर कैपेसिटेंस हो जाएगी Q अपॉन V। नाउ हाउ टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस? जैसे मान लो इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है, तो फिर V होगा V1 माइनस V2। Assume that this charge is uniformly distributed over the surface of the cylinders। तो फिर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो हो जाएगी Q अपॉन L। और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, V2 माइनस V1 इज माइनस E dr फ्रॉम R1 टू R2। तो उसके लिए अगर हम पहले किसी डिस्टेंस R पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा केवल अंदर वाले सिलेंडर की वजह से और बाहर वाले सिलेंडर की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, क्योंकि बाहर वाले सिलेंडर के लिए ये इंटरनल पॉइंट है। और इसका जो फार्मूला होता है वही सेम फार्मूला होगा जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज का होता है, यानी लैम्डा अपॉन
2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और फिर ई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो यह आएगा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस ई की वैल्यू रख दी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लिमिट R1 से R2, तो R1 ए के बराबर हो जाएगा और R2 बी के बराबर। इस माइनस को इस तरफ ले आओ तो ये उल्टा हो जाएगा V1 माइनस V2, और इसमें लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ये बाहर आ जाएगा, ये इंटीग्रल dr अपॉन r, फिर 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन होगा log r, और लिमिट पुट करने के बाद ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू log b अपॉन a, और फिर लैम्डा की वैल्यू भी रख दो q बाई l, तो आ जाएगा q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l log b अपॉन a, और फिर ये V1 माइनस V2 की वैल्यू यहाँ रख दो C, तो C आ जाएगा Q अपॉन V यानी V1 माइनस V2, तो ये आ जाएगा Q अपॉन Q, ये ऊपर चला जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, और log B अपॉन E नीचे रहेगा, Q से Q कैंसिल, तो फार्मूला आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन log B अपॉन A। ओके, थैंक यू।